तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। Happy birthday to you. Thank you. So it's Sister Jayanti's very young birthday today. And we have a couple of things. So I just want to say how it's been such a pleasure. We haven't always seen eye to eye, Sister Jayanti and I, but I have a tremendous amount of respect for her, and she has been such a part of my upbringing, not just spiritually, physically too, because I grew up with the Yagya. And yeah, I always find that we end up doing things together, and that's always nice, and I feel it's my fortune. So a lot of things I can say, Sister Jayanti, it wouldn't be enough, but really, yeah, you have played a pivotal role in my life and coached me and befriended me and mothered me and yes, sometimes told me off too. But yeah, I know you've had a great day today and you've had tons of blessings come your way from around the world. So I know you are already full, so a little more today, this evening. So I'd like to invite Pavitra. Pavitra has something for you as well. Atma, can you bring her on? Happy birthday, Didi. And like Aruna Didi was sharing that how you have inspired her life. But I'm sure if everybody is given a chance, so everybody will have a story to tell about how they have, like you inspired them and they were inspired by you. And this flower for you, and also like we have so many flowers for you. Thanks to you, because of you, our Baba's house is full of flowers today. And also we have Toli, special Toli for everyone. Laddu
for Yes. your birthday. She Thank you made again to you. event for you. Sadhvi. Thank you. I accepted with love. And I would like to say few lines in Hindi for Didi because I want to express my heart, and I think in Hindi I can express well. So just few lines, and I will try to translate also. विनम्रता, सादगी, रूहानियत जिनकी पहचान है, वही मीठी जयंती दीदी ब्राह्मण परिवार की जान है। देश विदेश के सभी सेंटर्स और मधुबन की आप शान है। ऐसी पवित्र आत्मा पर दादियां तो क्या, स्वयं भगवान भी कुर्बान है। Wow, wow. I want to translate, just a loose translation, of course. So she is known for her humility, simplicity, and spirituality, ruhaniyat on her face and every action. She is life of her heart of Brahmin family. She is honor or brilliance of all centers and Madhuban. And not only dadis, but even God himself is in love with her or have sacrificed himself on her. So how fortunate we are, Didi. You always inspire us, source of love, source of inspiration, and source of solutions for all of us always. So again, happy birthday to you. Thank you. Thank you, Pavitra. Thank you, Didi. And thank you, Pavitra. And gentlemen, we have one other thing. It's a little video. So that's put together by Brother Atma, who does the tech team and the tech for the revision. So let's have a look at that. Hola. It's your birthday, we're here to party and sing to you. He's from me. Hope you are bueno, the fun will rain, the whole day through. From the Gulf to the mountains, the city lights and fountains, we hope your birthday's excellent. You are another year older, so perhaps you should Be generally awesome. cause today is your day. Hola. It's your birthday, we're here to party and sing to you. He's from me. Hope you are bueno, the fun will rain, the whole day through. From the Gulf to the mountains, the city lights and fountains, we hope your birthday's excellent. You are another year older, so perhaps you should Be generally awesome. cause today is your day. Hola. You deserve a grand fiesta, and later on siesta, and the best of everything. Sí, señor. Thank you, Brother Atma. So My thank you. thanks to Brother Atma too. It's lovely. Thank you. So yeah, welcome everyone, and Sister Jayanti, I pass it to you. Thank you, Arunaben, for organizing such a big celebration with Kuwait, with Atma Bhai, Vietnam's included. So thank you, everyone. And yes, Baba's Murli, as usual, very powerful, very beautiful. But after the celebration, I just want to remind you that this is a Murli spoken at a very critical time in history. And that was the first Gulf War, when Iraq was actually invading Kuwait. And so this history is very much part of the story of the Middle East and how it was dealt with. Well, history will tell you all about that. But I know that Sister Vijaya used to share her experience of that period. And it wasn't an easy thing to go through. And at that time, she didn't have Baba. Baba was protecting her, no doubt, but she didn't have a conscious relationship with Baba in that way. That came much later on.
and she would share with us some of her memories and stories of that time. And so Baba, of course, acknowledges this, but that will come later. But तो ये मुरली जो है ना गल्फ वॉर के समय बाबा ने बोली है, तो 18 जनवरी की मुरली है 1991 की। एक तरफ एक सिचुएशन थी जहाँ ऐसी सिचुएशन थी, मतलब गल्फ वॉर चल रही थी, और हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन थी। माउंटेन में शांतिवन उस समय नहीं था। और दादी जानकी बहुत बीमार हो गई थी उस समय, डबल निमोनिया उनको हो गया था। और उस समय, और पहले से दादी 90 की जैसे उम्र में थी, और डबल निमोनिया उस समय उस उम्र में क्या होता है, उसमें तो लोग चले ही जाते हैं छोड़ के। लेकिन दादी जो है, दादी को अहमदाबाद ले जाया गया और वहाँ पे उन्होंने रिकवर किया, और उस समय से हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। 90 साल तक कुछ नहीं हमने सेलिब्रेट नहीं किया, वो करवाने नहीं देती थी सेलिब्रेशन। उस समय रिकवर किया दादी ने, चली जाती नहीं तो दादी उस समय, लेकिन दादी वापस आई। और तो 18 जनवरी को फिर बाबा आए। बहुत विल पावर, कितनी विल पावर होगी दादी में, कि जैसे दादी इतनी बड़ी बीमारी से बाहर आई तो कितनी बाबा ने शक्ति दी होगी। तो बहुत ऐसा समय 31 दिसंबर 1 जनवरी का बहुत ऐसा समय चल रहा था उस समय, वो बाबा के सामने थी उस समय दादी। तो बहुत इम्पोर्टेंट समय था लंदन के लिए भी, खास लंदन के लिए और संसार के लिए भी। और ये समय था जब ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, और हमें चाबी मिलने वाली थी 1991 में। तो बहुत इंटरेस्टिंग समय चल रहा था उस समय यज्ञ में, संसार में। तो ये बैकग्राउंड चल रहा था, बैकग्राउंड था। और तब बाबा 18 जनवरी को उस समय आए। तो आपने स्मृति और समर्थि का सुना ही होगा। स्मृति जो है जैसे याद, और फिर समर्थि शक्ति, आंतरिक शक्ति। तो 18 जनवरी को खास बाबा कहते हैं ना कि स्मृति दिवस माना जाता है, लेकिन बाबा ने कहा समर्थि दिवस या शक्ति का दिवस भी है वो। तो उस समय बाबा ने क्या कहते हैं, बाबा ने अपनी सारी शक्तियाँ जो हैं वो दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि को दी थी, ताकि वो बाबा की विरासत को आगे बढ़ा सके। तो बाबा ने बहुत ये समय यूज़ किया, ये शब्द यूज़ किया, स्मृति और समर्थि। कि समर्थि आती है ना, स्मृति से समर्थि आती है। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा की यादगार नहीं है, लेकिन शिव बाबा आए और ब्रह्मा बाबा को क्रिएट किया, आदिदेव को क्रिएट किया, और फिर उसके द्वारा ब्राह्मणों को क्रिएट किया। तो बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत बार, पहली ब्राह्मणों को बोला ना, आदि ब्राह्मणों को बोला, क्योंकि सामने दादियाँ बैठी हैं। 18 जनवरी ऐसा समय होता है, सब दादियाँ जो हैं ज़रूर इकट्ठी आती थी, मतलब मधुबन में हो जाती थी इकट्ठी। तो उस समय मम्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे उस समय, लेकिन दीदी दादी पुष्प शांता वो भी अव्यक्त हो गई थी। बाकी दादियाँ उस समय हमारे साथ थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी दादियाँ उस समय जब ये मुरली चली। तो बाबा उनको भी जैसे एक आदर सत्कार दे रहे हैं कि आप आदि ब्राह्मण हो, कि आदिदेव के द्वारा आप आदि ब्राह्मण रचे गए हो। तो आप लोगों के बिना तो यज्ञ कैसे क्रिएट किया जा सकता था। आप सभी इंस्ट्रूमेंट हो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ, और आप कैसे हो स्थापना, पालना और परिवर्तन के लिए आप सभी निमित्त हो। फिर बाबा ने बाद में दादियों से बात की है। तो दादियाँ उस समय बाबा के सामने हैं, और कहा जब पहले ब्राह्मण जब क्रिएट किए, उसके बाद उनकी पालना की, उनके द्वारा फिर क्या हुआ, बाकी और ब्राह्मणों की रचना हुई।
तो ये स्टोरी है 18 जनवरी की कहानी हमेशा बताई जाती है। ये सिर्फ आदिदेव की कहानी नहीं है, लेकिन ये सब ओरिजिनल ब्राह्मणों की कहानी भी है जो यज्ञ की स्थापना के निमित्त बने। और फिर बाबा बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, बाबा ने कितनी चीज़ें आपको याद दिलवाई हैं? आप सिर्फ ब्रह्म बाबा को याद कर रहे हो या फिर आप टीचिंग्स को भी याद कर रहे हो, जो बाबा के जो लोटस, या फिर हम कहेंगे कि कमल, जो बाबा के जो मुख से जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको भी याद करते हो। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा पूरा हफ्ता लगेगा, वो भी पूरा काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि एक ऐसा सवाल सिर्फ याद की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ रिवाइज नहीं, रियलाइज करना है ना। बाबा ने कहा ना स्वरूप बनने की बात है, तो स्वरूप की बाबा ने जैसे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो स्वरूप बनने की बात है, सिर्फ रिवाइज की बात नहीं है। शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप, ये सारी क्वालिटीज़ की बात है। बाबा ने आज बहुत सिंपल बता दिया कि इसका अर्थ है, तो आपको अगर एक्सपीरियंस होता, आपने सुना है, याद किया, आपने रियलाइज़ किया और फिर आपने उसका अनुभव भी कर लिया, तो एक्सपीरियंस जो है तो आपको वो स्वरूप बना देता है, तो आप वो बन जाते हो। तो इसीलिए बस याद करो, सभी चीज़ों को याद करो जो बाबा ने आपको दी है। जब आप गॉड की बात करते हो ना, तो सारी भगवान की सारी विशेषताओं की बात करते हो, लेकिन समराइज 5 शब्दों में आप समराइज कर देते हो, सार बता देते हो। जब मैंने पहला कोर्स जब मैंने शुरू किया था देना, मैं आगरा में थी, मुझे बस 1-2 हफ्ते से मैं रहती थी सेंटर पे। मुझे कहा गया किसी को कोर्स तो मैंने कहा मैंने किसी को कोर्स नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो हर लेसन से पहले आत्मा का ठीक था, बहुत क्लियर था, वो ठीक था, मैंने दे दिया। लेकिन दूसरा लेसन जब है, वहाँ बहन ने कहा मुझे 5 चीज़ें याद करो, बस हर चीज़ को जैसे टिक करते जाओ जब आप बात करोगे, तो वो समरी है। तो नाम, स्वरूप, उसकी विशेषताएं, गुण और उनका जो घर है और उसका कर्तव्य जो है, बस 5 बातें आपको याद करनी है, बतानी है लोगों को। सारी चीज़ें इन 5 बातों में आ जाती हैं, 5 शब्दों में सब समा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, तो भगवान के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता वो, लेकिन आत्मा पर भी अप्लाई होता है। तो कौन सी वो 5 पहलू हैं आत्मा के, जैसे याद करो वो 5 बातों को और फिर उनको अनुभव करो। नाम, आपका नाम क्या है? ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, आपका परमात्मा का बच्चा, ये हैं हम। आपका स्वरूप क्या है? आप कौन हो? आप ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने वाले हो, तो ये आपका स्वरूप है। और आपकी विशेषताएं क्या हैं? भगवान की विशेषताएं आपकी विशेषताएं हैं, गुण। कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य तो बहुत बड़ा है, आपका परिवर्तन का कार्य करना है आपको, तो वो कर्तव्य भी आपका ही है। तो और आप अंत में क्या है? आपका घर, आपके घर को याद करते हो, तो क्या, तो आप घर जाने की तैयारी करो, यहाँ से डिटैच करो स्वयं को। और जब आप अपने किंगडम को, अपने घर को याद करते हो, किंगडम को, तो अपने को तैयार करो, अपने उस राजधानी में जाने के लिए अपने को लायक बनाना है। तो ये 5 स्वरूपों को ही बस आप याद करो, उनके बारे में जब सोचना शुरू करोगे, तो आप हर एक उसको रियलाइज़ करो, एहसास करो इनका, फिर अनुभव करो, और उसके बाद आप स्वरूप बन जाओगे। तो मेरे लिए बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं आपका क्या अर्थ है शक्तिशाली विचार, पवित्र विचार? तो भगवान को अगर 5 हेडिंग्स के अंदर अगर भगवान को अगर आप सोचो, कितने नाम भगवान के हैं, जो भी नाम हैं,
कि कभी कभी टाइटल जो भगवान जो टाइटल आपको देता है वो याद करो, कभी जो भगवान के जो टाइटल्स हैं वो याद करो, लेकिन साथ साथ एक्सपेरिमेंट करो, इसके लिए ना अनुभव करो, प्रयोग करो। तो मेरे मन को मैं जब यूज़ करूं और बहुत ऊंची स्थिति से उसको यूज़ करूं और इसको ऐसे यूज़ करूं, मैं आत्मा, भगवान मेरा पिता, और आप बस तो आप रियलाइज़ करोगे कि आप स्वरूप बनते जाओगे आप, और सभी व्यर्थ विचारों को आप ख़त्म कर दोगे। तो आप अंदर ही अंदर इन सभी बातों का चिंतन करते रहोगे ना, तो कभी भी फिर कोई वेस्ट नहीं आएगा, तो आप माया पर जीत पालोगे। तो कौन से हैं प्योर पावरफुल थॉट्स, कौन से हैं, क्या अर्थ है स्वरूप बनने का, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? बाबा ने कहा, एक बहुत विशेष टाइटल बाबा ने लिया, नूर रतन। तो आपके जैसे कहा ना कि नैनों के जैसे नूर रतन, उसके ऊपर सोचो इसका क्या अर्थ है। हर सुबह अमृत वेला, खास अमृत वेला, इस एक टाइटल को लो जो बाबा ने आपको दिए हैं, और फिर उसके बारे में सोचो क्यों बाबा ने ऐसा कहा, इसका क्या अर्थ है, और फिर एक्सपीरियंस करो। तो आपको बहुत प्यारा अनुभव होगा। आपने बाप भगवान के नैनों के आप नूर हो, तो आपको भगवान भी प्यार कर रहा है, संसार भी प्यार कर रहा है। तो बाबा ना अब हमारे को स्मृति को जागृत कर रहे हैं कि मेरी जो याद मतलब पास्ट की बातों को अब याद नहीं करना, भूल जाएंगे, अभी भूलना है उसको, लेकिन जो बाबा याद दिलवा रहे हैं वो याद करना है। तो बाबा याद दिलवा रहे हैं कि जब आत्मा इस नशे में होती है कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है, इस अनुभव में होती है, आनंद के अनुभव में, तो प्यार में जैसे खो जाती है। और फिर इस अनुभव से क्या होता है, भक्ति में इसको क्या कहते हैं कि भगवान में हम खो गए, हाँ ऐसा मानते हैं। लेकिन हम अपने पहचान को थोड़ी खो देते हैं, आत्मा थोड़ी परमात्मा में लीन हो जाती है, तो ऐसा सोचते हैं भक्त लोग। लेकिन बस भगवान में बिल्कुल एक तरह से खो जाने की बात है। तो हमारी जो स्मृति है, हमारी चेतना है, बहुत ऊंची अवस्था तक पहुंच जाएगी। फिर बाबा याद कर रहे हैं कि हाँ लड़ाई तो चल रही है, उस समय गल्फ वॉर चल रही थी ना, खाड़ी युद्ध चल रहा था। बाबा कहते नथिंग न्यू ना, आपने पहले देखा है, बहुत बार आपने देखा है। आप इस सृष्टि चक्र में कितनी बार आपने पार्ट बजाया है, आपको याद है कितनी बार गए हो। तो नथिंग न्यू है, तो कोई सवाल नहीं उठाओ, एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी ना हो, आश्चर्य की मात्रा भी ना हो और सवाल भी ना हो, बस आपको एक याद है, रिमाइंडर है। बाबा ने तो हमें बता दिया पहले से ही। और फिर आप क्या करो, फिर ये आपके भाई बहन हैं, तो आपकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी क्या है, विश्व कल्याणकारी के नाते से आप उनके साथ शेयर करो आपके वाइब्रेशंस, भगवान की जो शांति के जो वाइब्रेशन है वो शेयर करो और सभी को शांति की किरणें दो। ये आपकी ड्यूटी है। और फिर मैंने ये बात भी देखी कि बाबा जैसे उस पहलू को अच्छी तरह से बता रहे, क्या सेवा होती है, मेरा रोल क्या है, बहुत सुंदर तरीके से बाबा बता रहे हैं कि मैं चाहे कोई जवान हूँ या बूढ़ा हूँ, फिजिकली शरीर रूप से या फिर ज्ञान में कोई पोजीशन है या नहीं है, जो कुछ है, कुछ भी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे मेन बात यही है कि जैसे बाबा के बच्चे होने के नाते हम बाबा का प्रकाश, बाबा की लाइट, शांति और प्रेम की जिनको ज़रूरत है हम उनको वो प्रकाश, वो लाइट और माइट बाबा की भेजे। क्योंकि उस समय लड़ाई चल रही थी ना, और इस समय दूसरी लड़ाई भी चल रही है, भी हम देख रहे हैं संसार में, और बहुत भी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं संसार में।
अफ्रीका में भी बहुत कुछ चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या क्या चल रहा है, बहुत बुरी समस्या, सीरिया में भी कुछ कुछ हो रहा है, तो कितना कुछ चल रहा है, बहुत चीज़ें चारों तरफ हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, इस समय भी। तो नाम और स्थान कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी क्या है भगवान के बच्चा होने के नाते से, वो लाइट और माइट हर एक को हम दें ताकि वो हर एक तक पहुंच सके। और आप में से जो देख रहे हैं, याद होगा वो, आपको याद होगा गल्फ वॉर याद होगी, कुछ में से आपको याद होगा कितना डरावना था वो सब कुछ, बहुत डरावना था, बहुत मुश्किल था सब कुछ उस समय। इसी तरह की बातें आज भी हो रही हैं, तो हमें भगवान का जो प्रकाश है, शक्ति है, वो हर जगह देनी है, तो हम उसको सच में हम बाबा के कार्य में मददगार बन सकेंगे। फिर बाबा बात कर रहे हैं, दादियों से बात कर रहे हैं, और बहुत प्यारा सीन है, बाबा उनको याद दिला रहे हैं कि बाबा उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सराहना करते हैं उनके साथी के रूप में, बाबा के साथी के रूप में, और कैसे वो सबको पालना जो दादियाँ देती हैं और सेवा जो बढ़ाई है, तो बहुत सारी पालना और सराहना बाबा कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं दादी जानकी को आप बिल्कुल ठीक हो, कोई भी अभी गड़बड़ नहीं है, बस आपको रेस्ट की ज़रूरत थी, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने को रेस्ट तो देते नहीं हो, तो ये बीमारी आपके लिए रेस्ट था बस। तो ये सिग्नल था कि आपके लिए रेस्ट करने के लिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो। तो दादी जो है बाबा की बच्ची होने के नाते से दादी ने फिर एडवाइस ली, और उन्होंने दादी ने थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन किया। फिर उसके बाद लंदन आई, और फिर बस एकदम से जैसे दादी रिफ़्रेश होकर आई, और लंदन में बहुत सारा हमसे जैसे सेवाएं करवाई दादी ने। उस समय वो दादी थी, तो बाबा का जो प्यार उनके लिए और जो रेस्ट करवाया बाबा ने, कि आपके लिए साइलेंस में समय जो बिताया, दादी को कहा वो भी आपके, उससे भी आपका फ़ायदा हो गया, तो आपको वो समय चाहिए था अपने लाइफ में इस समय। तो ये मेन मुरली थी। ग्रुप से बाबा फिर बात करते हैं फेथ के ऊपर, निश्चय की बात की ना। तो मतलब किस प्रकार से जो रिलेशनशिप में, फिजिकल एक्टिविटी में, हर जगह कैसे सफलता मिलते, बहुत प्यारी बातें निश्चय के ऊपर बाबा शेयर कर रहे हैं। और फिर बाबा बात करते हैं शक्ति दादियों से, बाबा बात कर रहे थे कैसे ये ब्रह्मा बाबा नहीं है जिसको याद किया गया है, लेकिन बाबा ने ब्राह्मणों को बनाया, लेकिन बाबा तो चले गए। आप तो शक्तियाँ हैं ना, जो फील्ड में हैं, कर्म क्षेत्र पे हैं, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद उनकी ही भक्ति में पूजा होती है। सच में भक्ति की पूजा है भारत में, तो जैसे ब्रह्मा का तो एक ही टेम्पल है, और हज़ारों जो मंदिर हैं सभी शक्तियों के। तो मेन तो हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत जगह पर छोटे छोटे भी हैं। मैंने देखा है कि एक छोटा सा टेम्पल दिखता है ना, लगता है किसके लिए है ये टेम्पल, ये सरस्वती या इसके उसके कोई ना कोई देवी के लिए होते हैं। तो पिछले कल्प की जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि भक्ति में अभी भी वो देवियों की पूजा करते हैं। और बाबा तो बहुत प्रेस करें, जैसे सरस्वती क्या है, गुप्त है। 1965 तक तो क्या है आपको पता है ना, ब्रह्मा कुमारी इसका तो कोई नहीं जानता था। 1965 तक जब मम्मा थी, सारी झूठी बातें ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बताई जाती थी, और मम्मा को तो कोई जानता नहीं था। लेकिन तो जब जहाँ मम्मा जाती थी, सारी उन बुराइयों को, उन गलत फहमियों को दूर कर देती थी। लेकिन बाबा कह रहे सरस्वती गुप्त है। भक्ति में बहुत ऐसा मेमोरियल है कि गंगा जमुना, तो जैसे अपने आप को जैसे नहाने जाते हैं ना, स्नान करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। और जमुना के में क्या बताते हैं, कृष्णा से रिलेटेड हैं,
लेकिन एक समय ऐसा है कि तीसरी जो नदी है सरस्वती जो है वो उनके साथ जुड़ती है, लेकिन वो गुप्त है। तो बाबा के बच्चे जो हैं, शक्तियों के कितने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं चारों तरफ, भारत में नहीं, बाहर भी शक्ति, बाहर में भी कई देशों में हैं शक्तियों के मंदिर। कि दादियों की शक्तियों की यादगार है। तो उसके बाद कितना सेवाओं का विस्तार हुआ है। और अब जो है निसंदेह जो भारत में इतनी टीचर्स हैं, 40,000 टीचर्स हैं भारत में, पूरे भारत में जो सेवा कर रही हैं। और हर सेंटर जो है एक शहर में जो सेंटर है, जो रूरल जो गांव-गांव में जाके सेवा करते हैं, सिर्फ शहरों में नहीं, लेकिन कितने गाँव के भी बिल्कुल गली-गली में जाके सेवा करती हैं बहनें। तो पूरा भारत जो है ना, पूरा जो नक्शा जो है सेवा हो चुकी है वहाँ, तो पूरे नक्शे में। तो बाबा ने दादियों ने प्रेरणा दी सभी को ऐसी सेवा करने की, तो इसलिए दादियों को याद किया जाता है। और जो देवियाँ हैं, मम्मा जो है उनको भी याद किया गया है, लेकिन गुप्त रूप में। तो ये आज की मुरली की समरी थी। थैंक यू जी। आपने अगर न्यूज़ सुना होगी दीदी, बहुत हिंदू जो डिमांड कर रहे थे, बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ पर लॉक रूम जैसे कमरे बंद हैं, उनके अंदर जैसे, तो उसको खोलने की जैसे परमिशन मिली। एक बहुत सारे कमरे होते हैं ना, एक शिवलिंग मिली है, एक मिला है एक बहुत बड़े मस्जिद के अंदर, बहुत बड़ा शिवलिंग। तो बहुत औरों को भी खोलने की इच्छा है। तो ये सब जगह यादगार हैं। नथिंग न्यू के बारे में बात है। मैं सुन रही थी, संदेश दादी का सुन रही थी दीदी। उन्होंने कहा कि उस क्लास में कि बाबा ने सब कुछ दिखाया। Yes, there's a request again, Genuine, for you to slow down. Maybe I should slow down too. So yeah, she was saying in that class. वो कह रही थी अपने क्लास में कि बाबा ने सब कुछ उनको दिखा दिया, सारा विनाश ये सब दिखा दिया, क्या होगा, और सतयुग के बारे में सब कुछ बता दिया था। जब उनको सुनते हैं संसार में, उनको लगता कुछ नहीं, नथिंग न्यू, तो उनको तो जैसे पहले ही से था। लेकिन हमने तो ये किए नहीं है ना, हमें सिर्फ ज्ञान को ही यूज़ करना है। कि फिर कैसे भाई, जिस दादियों ने तो साक्षात्कार किया, देख लिया, तो नथिंग न्यू हो रहा है कि हाँ हमने तो देख लिया, तो हमें कैसे सिर्फ ज्ञान के आधार पर है। कि आज जैसे मैं मुरली पढ़ रही थी आज सुबह, बाबा कह रहे थे, आज कह रहे थे कि मैं राजयोग पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार आप भूले हो, और मैं फिर से आया हूँ पढ़ाने के लिए फिर से। तो आज सुबह जब मैं पढ़ रही थी, मैं खुद ही पढ़ रही थी जब, तो मैं उस समय एक पल के लिए रुकी, क्योंकि कल की मुरली भी जैसे रिवाइज और रिवीजन रिफ्लेक्ट के बारे में थी। तो मैंने आज मैं रुकी थोड़े पल के लिए रुकी पढ़ते पढ़ते, और फिर बहुत प्यारी फीलिंग आई मुझे कि कैसे बाबा याद रखते हैं, हर कल्प ऐसे याद रखते हैं बाबा, हाँ कल्प, और फिर बाबा आते हैं और हमें याद दिलवाते हैं। हर कल्प के बाद ऐसे आ जाते हैं। और कभी कभी आप अपने आप को अगर वो स्पेस दो, वो समय दो रिफ्लेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए, तो बहुत सच्चाई से आपको अंदर ना वो अनुभव होगा कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है, पिछले कल्प में मुझे पढ़ाया था, आप भी फिर से पढ़ा रहे हैं बाबा मुझे, भगवान मुझे, और अब फ्यूचर भविष्य में भी होगा। बाबा कहते कन्फ्यूजन नहीं, आप शांति से बैठ के सोचोगे ना, अनुभव होगा कि बाबा बार बार में हर कल्प मुझे पढ़ाते हैं। जैसे लोगों को डेजा वो होता है ना, डेजा वो एक शब्द है जिसमें लोगों को पिछली याद आ जाती है।
एक दफ़े किसी नए देश में गए हैं, मुझे ध्यान है, मेरे को हुआ था एक बार, जैसे एक माउंटेन में मैं जा रही थी, पहाड़ी में, मैं बस में थी, बस ड्राइव कर रहा है, लेकिन जैसे उस कोने में हम गए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा विजुअलाइज कि क्या होगा वहाँ पे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ। भारत में मैं पहले उसमें कभी गई नहीं थी, वो मेमोरी इस जन्म की नहीं थी जो आई याद, मे बी पास्ट जन्मों की थी वो, या पिछले कल्प की याद थी वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो था, एक निश्चितता थी कि हाँ मुझे पता है कि उस कोने में क्या है, उस मोड़ के बाद क्या है। और मैंने देखा, जैसे मुझे लग रहा था कि ये जब बस मुड़ रही है ना पहाड़ों में, तो पहाड़ मुड़ने के बाद ये दिखाई देगा, और सच में वही चीज़ दिखाई दी दीदी को जो सोचा था। तो इसका अर्थ है कि सिर्फ थियरी नहीं है ये, लेकिन अपने को समझना है, ये सच में ये अनुभव करना है। हम अपने को समय नहीं देते हैं फील करने के लिए कि बाबा जो कह रहे हैं। और हाँ, क्लास में भी फिक्स टाइम होता है, 45 मिनट्स होते हैं, उसमें बस पढ़ो और ये वो, और बस फिर हम चले जाते हैं क्लास के बाद। तो इतना ही समय रहता है ना अपने लिए, लेकिन समय निकालना चाहिए। जब आप अकेले मुरली पढ़ते हो तो हर एक को एक से मेरे कोई नहीं कह सकता मेरे पास मुरली नहीं, हर एक के पास मुरली है आज के दिन। तो शांति से बैठो, उस मुरलियों को शांति से पढ़ो और अपने आप को वो मौका दो कि हाँ रे मुझे तो पता है ये सब कुछ पहले से, हाँ मुझे पता था बाबा क्या कहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मुरलियाँ सुनी हैं, नहीं इसलिए नहीं, लेकिन सच में मेरा एक सवाल था और आज बाबा की वो मुरली में उत्तर आ रहा है, और बाबा मुझे वो उत्तर दे रहे हैं जो मेरे दिल में था, बाबा उसका जवाब दे रहे हैं। तो पिछले कल्प की तरह बाबा मेरे डाउट्स को दूर कर रहे हैं, मेरे निश्चय को पक्का कर रहे हैं। तो अगर हम सभी अगर ये अपने लिए करें, बैठ के टाइम से अपने समय दें और ये आइडिया के साथ प्रयोग करो कि पिछली जो साइकिल थी सृष्टि चक्र अभी फिर से रिपीट हो रहा है, और फिर आपको फ्यूचर की चलो सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिछले कल्प में जैसे हुआ था अभी फिर से हो रहा है, तो आपको अनुभव होंगे। थैंक यू जयंती दीदी। और संतोषी दादी ने कहा, पहले हमने डिस्कस नहीं किया दीदी इस बारे में, उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वतन में, सटल रीजन में 5 कमरे थे। जैसे किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधार पर इन 5 कमरे थे कि बहुत डेफिनेशन है धर्मराज की कि आप क्या, कि धर्मराज क्या है आपके समझ से, कैसे होगा अंत में सजाओं का। बहुत मुरली में बाबा आजकल ना धर्मराज की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ, ये धर्म सच्चाई जो है, धर्म सच्चाई का रास्ता, धर्म और राज, किंग है, राज जो कि राजा है, कि सच्चाई का जो है, जो सत्यता का जो राजा है ना, तो धर्मराज वो भगवान का ही तो रोल है ना वो, तो सच्चाई का जो राज स्थापित करना। जब अंत समय आता है कि जो मैंने कुछ चीज़ सेटल नहीं की, मैंने योग से सेटल नहीं किया, हमने कोशिश तो की है, लेकिन इतना बहुत गंभीरता से हमने उस पुरुषार्थ को नहीं किया है कर्मों के अकाउंट को सेटल करने का। तो हाँ, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, हम अच्छे ऊंची स्मृति भी कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अरे मेरे में कमी है अभी भी, जिसको मैंने अभी तक हटाया नहीं है, भगाया नहीं है, और अब मैं धर्मराज के सामने हूँ। तो मुझे एहसास होता है उस पल में धर्मराज के सामने
I'm also experiencing. जो कि मैं अनुभव भी कर रही हूँ। I'm experiencing a vision of all my जो मैंने misdeeds बुरी जो through कर्म किए हैं ना, great द्वापर युग से आयरन एज और कलयुग और आज तक जो बुरे कर्म किए हैं, सबका जैसे मुझे साक्षात्कार हो रहा है। as each life और जो हर जीवन मेरे सामने ऐसे आता जा रहा है, हर जन्म, is और connected जो भी मेरे जीवन में जो कनेक्टेड हैं दूसरे लोग हैं, वो भी मेरे साथ दिखेंगे, जो भी थे मेरे साथ। I will have that तो मुझे वो एहसास होगा of कि what it is कि मैंने I क्या did गलत किया, लेकिन साथ ही साथ I'll be able क्या to हम ये see देख पाएंगे, पा रहे हैं कि I did what was good जो सही भी मैंने किया कुछ, and that और वो भी, also will be part of my तो वो karma. भी मेरे कर्मों के अकाउंट का हिस्सा होगा ना, जो मैंने अच्छा किया। The regret जो that I पश्चाताप जो मुझे experienced अनुभव that होंगे उस moment समय for not कि having done हमने कुछ खास किया नहीं, जो मुझे करना चाहिए था, done things I shouldn't जो have किया done, मैं जो नहीं करना चाहिए था। तो ये सारी बातें जो है ना, flash in front तो of me. हमारे सामने वो चीज़ें आएंगी, जैसे फ्लैश होंगी। और फिर क्या होगा, अपराध भाव होगा, और उसके बाद वो सजाओं का जैसे साक्षात्कार होगा। तो धर्मराज की बात नहीं, कोई ऐसा अलग कोई बैठा हुआ है, किसी के हाथ पैर काटने वाला कोई अलग से बैठा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो रियलाइजेशन ही असल में सजा है। योग से नहीं होगा वो, लेकिन अपने जो सजा तो खानी पड़ेंगी, अपने जो दुख का जो अनुभव होगा ना, दर्द का, उससे होगा। So, Jinben, where is the तो tribunal? ट्रिब्यूनल कहाँ है दीदी? Does the tribunal sit then? ट्रिब्यूनल कहाँ पे है दीदी? The tribunal is with ब्रह्मा बाबा के साथ है ट्रिब्यूनल, because क्योंकि धर्मराज जो है, because maybe हाँ, yes I got the instructions बाबा से मुझे मुरली से मुझे श्रीमत मिली है, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखा, क्योंकि बाबा व्यक्त एंजल बन गए थे, फरिश्ता बन गए थे। तो कैसे बाबा मुझे सिग्नल करते हैं, इशारा देते हैं, पढ़ाते हैं? हाँ, मुरली के द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन दीदी दादियों के द्वारा, उसके बाद कुमार का दादी जानकी के द्वारा, दादी गुलजार के द्वारा, ये जो है, जो मेन डिसीजंस लेते थे, जो कुछ भी होता था परिवार में, यज्ञ में, तो सब कुछ उनके अटेंशन में आता था, देखते थे वो, और वो इंसान को बुलाते थे, उनके साथ बात करते थे, जो गलती करता था, जो भी करता। क्या यही सिर्फ गलती की इसने ये, और वो एहसास कर रहे हैं अपनी गलती का, किसी को एहसास हो गया, या फिर वो तो वो अपने आप को बहुत, जैसे कि बार बार में गलती करने का उनकी जानबूझ के कर रहे हैं, कि हर चीज़ फ्री में दी जा रही है, बिना चार्ज है, और ये अलग टीचिंग्स नहीं, यहाँ से पढ़ाई, यहाँ से टीचिंग्स को ले रहे हैं, वो अपने आप को ना अलग एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो दादियों ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि ना अपना अपना अलग अलग सब बनाते रहते थे, तो धर्मराज के साथ वो भी होंगी। तो दादियाँ भी जैसे समझाती हैं सभी को कि भाई गलती नहीं करो, तो दादियाँ भी ट्रिब्यूनल में होंगी, दादी प्रकाश में, दादी गुलजार, दादी जानकी, और हाँ दीदी मनमोहिनी भी, लेकिन दूसरे तो पता नहीं इस तरह से। लेकिन हाँ, भारत में उनको बहुत समय उनको मिला, सभी दादी जानकी के अलावा सभी दादियाँ उनके पास थी, और अंत में तो वो उन्होंने पूरा समय जो है ऊर्जा भारत में दी। तो जरूर मतलब उनके ऊपर ये बात पड़ेगी, उन्होंने कितनी पालना ली। हाँ दीदी, जैसे आपने कहा, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में, तो मतलब शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और ये सारे आदि रत्न, ये सारे हैं ट्रिब्यूनल। बाबा कहते हैं सेट ऑन योर, अपनी सीट पे सेट हो जाओ। उन्होंने कहा है कि हाँ, आपके अंदर सारी शक्तियाँ, ये सब बातें जनरल में, तो अपने आत्मिक स्थिति की सोल कॉन्शियसनेस पे बैठना होता है, सीट पे सेट करना है।
जब ये गहराई है, जब ऊपर ऊपर से नहीं है। हाँ, मैं सोच रही, हाँ मैं आत्मा थी, नहीं, जब गहराई से जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, वही है अपनी सीट पर सेट होना। जब मैंने ये परखने की शक्ति है, जब उस समय मेरे सामने मेरे पास, और मैं उसको यूज़ करूँ उन्हें समझने के लिए कि क्या होना है, अगला कदम क्या है, तो ना उस सीट पर सेट होना मतलब वही है गहराई से आत्मिक स्थिति का अनुभव। थैंक यू जयंती दीदी, और बहुत सारे बर्थडे ग्रीटिंग्स आ रही हैं आपके लिए दीदी। कोई पूछ रहे हैं, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे, क्या आप बता सकते हो रुंडमाला और रुद्रमाला और विष्णुमाला और सारी दीदी मालाएं बता दो। रुद्रमाला क्या है? शिव की जो माला है, तो बाबा कहते हैं जब हम परम धाम में जब जाते हैं, हम वहाँ जाके जैसे ना हम देखते हैं ना, जैसे एक झाड़ के रूप में ऊपर देखते हैं ना हम जब परम धाम में, जैसे एक माला है, जैसे शिव बाबा के चारों तरफ माला है, सबसे ऊपर शिव बाबा है, तो वो रुद्रमाला हो गई। और फिर विष्णु की माला है, जिसे बाबा कहते हैं रुंडमाला। तो विक्ट्री जो विजय माला है, जो 108 की जो माला है ना, छोटी मोटी पनिशमेंट उनको मिलेगी। 8 को कोई पनिशमेंट नहीं, वो ट्रिब्यूनल है, लेकिन जो 108 जो है नंबर वाइज जो है वो क्या है, वो कुछ पनिशमेंट या थोड़ी बहुत, लेकिन जो भी है सेटल हो जाता है। तो वो जो है घर जाती हैं आत्माएं, और फिर जल्दी से नीचे आ जाती हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा के साथ, मम्मा की आत्मा के साथ, सब आज एडवांस पार्टी की आत्माओं के साथ नीचे आ जाते। तो उस समय घर जाते हैं, वापस आते हैं, और बाबा उनको बताते हैं विष्णु की माला, गाने विष्णु के गले की माला, तो जो सतयुग में जो पार्ट प्ले करते हैं। तो रुंड माला ही विष्णु माला है। और कोई पूछ रहा दीदी, बाबा ने जो सेक्शन बाबा ने कहा था, बाबा जो नूरे रतन, And then after a few lines, Baba says, what is the power of the eyes? So somebody's asking, what is the power? तो नैनों की क्या शक्ति है? बाबा ने बात की ना, तो ये पूछ रहे हो। तो आँखें तो जैसे खिड़की हैं, जैसे आत्मा की ना, पीस प्रेम सब यहाँ से तो बहता है। तो आँखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये सेंस ऑर्गन नहीं है देखने का, लेकिन ये तो जिस प्रकार से हमारे अंदर जो है वो हम संसार से कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं अपने नैनों से। तो बहुत ज़रूरी है चेक करना मेरे अंदर आँख में क्या है, मतलब क्या चीज़ की स्मृति है असल में। दादी बहुत नोटिस करती थी, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती थी, माइक में ऐसे किसी का नाम लेती थी। हाँ, देखो आपको मुरली सुनने की ज़रूरत है, जैसे ना दादी जान की जो है ऐसे ही बिना किसी हिचकिचाहट के क्लियरली सबका नाम ले लेती थी अगर दादी को कुछ लगता था। तो नैन जो है, तो आप देखते हैं कि मन जो है भटक रहा है इधर उधर, या डिस्ट्रैक्शंस है इधर उधर, मन भटक रहा है, तो आंखें से पता चल जाता है इधर उधर भटकती हैं आंखें। तो बहुत ज़रूरी है, आंखें तो महत्वपूर्ण पार्ट है आत्मा संसार में। जिनकी आंखें नहीं है वो विश करते हैं कि भाई आंखें हों, लेकिन हमारे तो देखो 2 आंखें नहीं अपने पास, तो तीसरी आंख भी अपनी तो चमक रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आँखों का, नैनों का। जब आप सब्जेक्ट में हो दीदी, करी रख के आप बता सकते हो। विषय वैतरणी नदी के बारे में बता सकते हो दीदी? विषय वैतरणी नदी, ओशन ऑफ विषय वैतरणी नदी बोलते हैं ना, जो विषय विकारों की जो नदी है। तो बाबा इसको संसार, आज के संसार को समझाने के लिए हमें ये शब्द यूज़ करते हैं, बाबा विषय वैतरणी नदी। ये सच में चारों तरफ क्या है अभी,
बिल्कुल ही You can see how it applies जहर to है, the जैसे state कितना pollution, पोल्यूशन है एक तरह से, the pollution of the human मनुष्य body, शरीर का पोल्यूशन है, the हाँ species, चारों तरफ the biodiversity कितना being सब चीज़ें जैसे finished ख़त्म भी होती, through कितना poisons ज़्यादा हमने all the चारों तरफ time. जो एक So we are जहर जैसे actually, फैला in दिया है। terms of pollution, living in a state of the river of poison. Whoever wrote these scriptures, whenever they wrote them in the Middle Ages, nobody could have taken that किसने literally. जैसे And here, जो लिखा गया ना, this particular aspect is literal. It's कितना physically true. which जैसे लोगों ने इसने इतना उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, जो लोगों ने विषय वैतरणी नदी सब बोल दिया, लेकिन बाबा हमें इसका अर्थ समझा रहे हैं। it's a bad place and there's non-stop बहुत sin चारों going तरफ around इतना ज़्यादा everywhere, पाप चल रहा है चारों तरफ, everywhere. बहुत ज़्यादा। But अब now बाबा it's कह रहे saying हैं that, कि हाँ yes, it is ये चारों pollution तरफ of क्या है, poison, संसार तो but एक you Brahmins are living बिल्कुल within it, जहर you का have एक to remain सागर है चारों untouched तरफ ना। by the poison तो हम तो चारों तरफ around जैसे you. जहर के बीच में ही हम The images रह in the रहे हैं ना, scriptures, east तो and इसलिए west, are pretty बहुत अलग graphic बताया है। of what happens in hell. मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ना बहुत ज़्यादा दिखा रखा है, पश्चिम और पूर्वी सभ्यता में कि नरक में क्या क्या होता है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। Yeah, thank you so much, because there were actually quite a few people who asked me. बहुतों ने पूछा दीदी मुझसे। Gentlemen, किसी somebody कोई कह रहा है saying, दीदी questioning that in मुरली में Murli of November 79, Baba said religious leaders, politicians, scientists, and normal humans started failing, and they have started to look for. तो a supreme 1979 power. की मुरली में कह रहे हैं But he said कि to कह us रहे हैं Brahmins कि that they need the ghee, the oil of our thoughts कि to get मतलब elevated. बाबा कि किसी ने कहा है कि बाबा ने कहा है कि सारे जो रिलीजियस जो लीडर्स हैं सब कुछ ना अभी हारना शुरू हो गए हैं, कि बाबा ने कहा है ना उनको घी दो, मतलब ज्ञान का घी दो, जो ये लोग रिलीजियस लीडर्स हैं। तो अब भारत में तो क्या है कि विंग्स हैं, जगदीश भाई हैं, उन्होंने जो शुरुआत की है, सारा सब्जेक्ट जो है शुरुआत की किस प्रकार से। हाँ, आपने देखा है कि शुरुआत में जो है, हाँ ये सब हुआ था, मेडिकल विंग स्टार्ट हुआ और फिर एजुकेशन विंग हुआ और फिर ये सारे विंग्स होते गए। हाँ, service of these areas have been going on in भारत में तो 50 कितना years, very ये long सब time, and they've been able to reach very, very high levels within that. So yes, they're searching for those individuals who can actually be a support for Baba's तो work. बाबा के कार्य के लिए I remember अब्दुल कलाम जो हैं, first came पहले to जब Abu माउंट आबू आए थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे। At that point, he was just one of the chief scientists at तो वो उस समय वो equivalent of NASA. जैसे नासा के जैसे वो भारत में बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। agency that does a lot of research and development. So he came to us that time, and he फिर उसके बाद क्या वो मधुबन में बाद में आए। saw the CAD program in operation, thought it was a brilliant idea, supported it. बहुत अलग अलग तरीके से सब बातें होती थी। हाँ, जैसे कि बहुत बाबा के कार्य में सहयोगी था वो। तो बाबा के लिए जैसे वो माइक बना, बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारी की वो बातें करते थे। अब्दुल कलाम जी तो एक तरफ जो है एक सेटअप है पूरा, कि जहाँ पे आप लोगों टॉप लोग हैं उनको आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ इतनी बड़ी है, दिखाई दे रही है। और उसके बाद सिचुएशन है अब्रॉड, बाहर में 8 स्टूडेंट हैं, 8 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट ही नहीं हैं, तो आप विंग्स तो नहीं बनाओगे ना वहाँ पे जैसे भारत में है। तो कॉन्टैक्ट्स के द्वारा आप जो कोई सेवा करते हैं, कोई कॉन्टैक्ट है मेडिकल में या किसी, तो दूसरों की थोड़ी सेवा कर रहे हैं उस तरह से, और शायद वो उन आत्माओं से कनेक्टेड हैं, फिर सेवा करनी शुरू कर देते हैं ऐसे से। और हो सकता है कितना आगे तक वो सेवाएं चली जाए। तो कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ हुआ पिछले हफ्ते। एक बहन जो बीके है, 2 साल की थी तब से वो ज्ञान में है, और क्योंकि उसके पेरेंट्स आते थे तो उसने पढ़ने बाहर पढ़ती रही, वो करती रही। और अभी वो क्या है, तो रेडियोग्राफी की वो हेड है, बहुत हॉस्पिटल्स की वो हेड है, जैसे कि ना रेडियोग्राफी की।
लंदन में अलग अलग ट्रस्ट हैं, तो हॉस्पिटल्स हैं कुछ, कईयों की जैसे कई ट्रस्ट के कई हॉस्पिटल्स हैं, तो वो बहुत बड़ी हेड है। तो वो जो है फैमिली फ्रेंड है उसका कोई और वो जो है तो वो एक बहुत दूसरे ट्रस्ट के जैसे हेड हैं, जैसे जहाँ पे मतलब 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स रोज़ आते हैं। तो बहुत इस प्रकार के अपर क्लास के ऐसे के लोग हैं वहाँ पे जो आते हैं उन बहन के उस फ्रेंड के पास। तो उस भाई ने हमें इनवाइट किया प्रेजेंटेशन में। तो पूरा बोर्ड जब था तो ये सारे नेशनल हेल्थ सर्विस के जो लोग थे वहाँ पे उनको हमें इनवाइट किया गया। 1 साल पहले मैंने सोचा नहीं था ऐसी सेवा हो सकती है, लेकिन अभी देखो कितना आसानी से ये सेवा हो गई है उस बहन के द्वारा जो वहाँ पे काम करती है, उस फील्ड में काम करती है, और वो उसके फ्रेंड के इस तरह से। तो जो बहन की जो फ्रेंड है उसका भाई है, वो भाई जो बहुत बड़ा है। तो इस तरह से कैसे कैसे बाबा की सेवा होती रहती है। तो बाबा कोई ना कोई आत्माओं को ढूंढ लेता है और सेवा होती है। आपको नहीं पता कैसे सेवा हो जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात है बाबा को प्यार करना, अपने दिल को, अपने मन को बाबा से कनेक्टेड रखना, मेरे आँखों को अलर्ट रखना, खोले रखना। अवसर आ सकते हैं कहीं से भी, फैमिली फ्रेंड हो सकता है कोई भी, या फिर मुझे ध्यान है हम यूनेस्को के डायरेक्टर से मिले थे पेरिस में। इतना आसान नहीं था लेकिन हो गया। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मॉरिशस का कोई भाई था, तो यूनेस्को पेरिस में उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, तो उसने हमें मदद की मॉरिशस से भाई। और ऐसे कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम था, वो आप लोगों में से किसी को याद होगा, बहुत महीने तक वो चला। फिर फेडरिको मायोर जो है वो मेडिकल बैकग्राउंड साइंटिस्ट है और बहुत अद्भुत इंसान है। और उन्होंने कल्चर ऑफ पीस ये संसार के लिए शुरू किया यूनेस्को के द्वारा। जब उसने पोस्ट जब छोड़ी उसने, तो भी यूनेस्को सोचते थे कि कैसे उनके साथ कैसे कनेक्ट हो जाए उसके साथ। तो पता चला तो वो भाई जो है वो ज्ञान उसके साथ वो पढ़े हुए यूनिवर्सिटी से, मतलब कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल आया। तो वो जो भाई जो है पहले इतना मुश्किल था मिल पाना, लेकिन अभी जब वो छोड़ दिया उसने यूनेस्को, तो बीके को लगा कैसे कांटेक्ट करें। तो ऐसे एक बीके निकली, उसके जो क्लासमेट है उसका वो बाप है। इस तरह से कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल आते हैं। सो रिलीजियस लीडर्स तो आएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स भी आएंगे, हर कोई आएगा, बहुत लोग आएंगे। तो बाबा की तो प्रत्यक्षता होनी ही है, कोई सवाल ही नहीं है इसके लिए। तो वो तो होना ही है, कोई सवाल नहीं। लास्ट कल्प की आप पिछले कल्प की आप मेमोरी को इमर्ज करो, सारे जो दरवाजे हैं वो खुलने हैं। बाबा ने कहा इन 3 तरह की पहलू की बात बाबा ने कहा ना कि जो पॉलिटिकल हैं, उसके बाद रिलीजियस लीडर्स की, धार्मिक लोगों की, राजनेताओं की बाबा ने बात की। उनके बहुत शक्ति है उनके पास ना, पॉलिटिशियंस की तरह तो नहीं, लेकिन धार्मिक लोगों के पास, धर्म नेताओं के पास बहुत शक्ति होती है। अब जिस देश में वो है उनकी बहुत शक्ति होती है। और तीसरे जो है रिलीजियस कि कितनी बार मैं सोचती हूँ कि क्रिश्चियनिटी में कितने ऊंचे लोग हैं, बाबा के कितने करीब आए हैं, कितने सारे जो लोग हैं। बुद्धिज़्म भी बाबा के मधुबन में आके जा चुके हैं, कितने हाई लेवल जो इस्लाम के बाबा के घर में आ चुके, चाहे मधुबन में, अपने देशों में, कहाँ। लेकिन बाबा का सर्कल तो बढ़ता ही जा रहा है ना। और हमें लिस्ट नहीं बनाते हम हर डॉक्टर का, हर एक उसका, हर वो आया
हम ऐसे लिस्ट तो नहीं बना रहे, लेकिन वो होता जा रहा है ना। लेकिन हमारे पास डेटाबेस है अपने पास, तो वे तो कंप्यूटर में लिख देते हैं, और कंप्यूटर तो हमेशा आपका आज्ञाकारी रहेगा, वो आपको बना के रखेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को बचा के रखेगा। तो ये समय है असल में देखने का कि हमें अब भगवान का मैसेज कहाँ देना है, किस तरीके से देना है। और ये समय है, सच में ये समय है। Yeah, it's हाँ दीदी, time. यही समय है। Sorry, I have some nice questions, but maybe you can ask them again. अगले हफ्ते हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है अभी तो। थैंक यू आप सभी का। एक और चीज़ है अपने पास, जसू बहन है। Jasuben, are you going to appear with something special and something जसू sweet? बहन आप आओ। We were told no cakes for us. केक है इनके लिए। So this is instead of a cake. Can you show us Jasuben in the camera? कैमरा में दिखाओ। Can you do something with the camera? You can see it's a heart-shaped. Where is it? This side. दिखा रहे हैं। Plate. उप्स, गिर रहा है इनका। It's a heart-shaped tulies. And it's got rosebuds, Roses on it. and we're having a shower of roses here. Rosebuds. This has just been made. So the laddus from Kuwait got तो लड्डू जो हैं transformed into coconut. तो लड्डू जो हैं कुवैत And, से वो we've अभी also got a टोली बन गई। beautiful orchid plant. ऑर्किड from प्लांट someone. मिला है दीदी को Gentleman. गिफ्ट में, किसने दिया है, बहुत प्यारा। The toli, we thought we would show it to you on camera. We can't हम give it दिखा to तो all नहीं of पा you, रहे, but लेकिन Sister Jayanti has been receiving so much from everyone, जयंती को and तो so on behalf of जयंती बहन की ओर से आप to सभी all को of you, that your mouth is sweetened even just with the आपका मुख बस देखने से ही मीठा कर लो आप सभी। Yes, we got used to Zoom. हमें तो जूम टोली की आदत पड़ गई, अभी तो कोई बात नहीं। That's a very ये good बहुत अच्छा आइडिया है। Ben, I think ओह, on behalf of everyone. Yeah, thanks. बहुत अच्छी टोली है, बहुत टेस्टी टोली दीदी कह रही है। And then may you have a very more lovely remainder और of the बहुत day. अच्छा दीदी, आपका बचा हुआ दिन बहुत अच्छा जाए। बाबा और भी बहुत सारी Sweet dreams. आपको बहुत सारी और भी ब्लेसिंग्स दे, और बहुत अच्छे सपनों के साथ आप सो जाओ आज। Nice month. बहुत अच्छा म्यूजिक है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you, एवरी everyone. हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।